Dear student, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to learn event. Before we start event, we see what is the meaning of favorable outcomes. The outcomes satisfying particular condition are called favorable outcomes. The outcome satisfying favorable condition is called favorable outcomes. We know outcomes, the result of random experiment are called outcomes, and favorable outcome means the outcomes satisfy particular condition are called favorable outcomes. See here, if you throw a die, what is the sample space? S is equal to, in curly bracket, 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. Suppose you throw a die and you get only even number on the upper surface of the die. So here favorable outcome or condition is that, here condition is, if you throw a die and you get only the even number on the upper surface of die. So what is the favorable outcome here? Favorable outcome are even number. So even number are 2, comma 4 and 6. These are the favorable outcome. क्लियर? देखिए आप क्या कर रहे, लोडू खेल रहे. अब आपको क्या है, आपने डाई थ्रो करे तो आपको क्या होना, इवन नंबर ऑन डाई पर. तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, इवन नंबर है. अब इवन नंबर कौन से है इसमें डाई पर, 2 है, 4 है, 6 है. तो ये क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हो गया. ये एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही. कंडीशन क्या है कि डाई के अपर सरफेस पे इवन नंबर आना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फेवरेबल आउटकम बोलेंगे. क्लियर? Now event, a set of favorable outcomes of a given sample space is an event. A set of favorable outcome of a given sample space is called event. दिए हुए सैंपल स्पेस के फेवरेबल आउटकम का सेट को क्या बोलते, इवेंट बोलते. अब आपने यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या है, डाई के अपर सरफेस पर इवन नंबर आना. तो क्या है, इवन नंबर कौन से हैं, कंडीशन क्या है, 2, 4 और 6. इसको क्या किया हमने, सेट के फॉर्म में लिखिए, 2, 4, 6. ये क्या इवेंट है.
Clear? Set of all the favorable outcome is called event. Events are generally denoted by capital letter A, B, C, D, etc. not letter S. अब इवेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसा ए है, बी, सी, डी एक्सेट्रा. मैंने क्या कहा आखिर में, क्या कहा? नॉट एस. एस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एस किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? सैंपल स्पेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यहां पर एस के अलावा कोई भी लेटर से आप इवेंट को डिनोट कर सकते हैं. वी डिनोट इट बाय ए. क्लियर? यहां पर फेवरेबल आउटकम कौन से हैं? इवन नंबर है. The number of element in event is denoted by n of a. Suppose आपको एक इवेंट A दिया हुआ है, अब उसमें कितने एलिमेंट है आपको डिनोट करना है, तो आप क्या करेंगे? n of a से डिनोट करेंगे उसको. अब आप बोलेंगे सर हर वक्त A आने वाला है क्या? नहीं, वैसा नहीं है. अगर B इवेंट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को n of b से डिनोट करेंगे. C इवेंट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को n of c से डिनोट करेंगे. हमने क्या किया यहां पर? इवेंट को A से डिनोट किया, इसलिए यहां n of a इज इक्वल टू हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन A? देयर आर 3 एलिमेंट. 2 is 1 element, 4 is second, 6 is third, 3. n of a is 3. Event is a subset of the sample space. We learned the definition of subset in class 9 chapter set. If A and B are two set and all the element of set A lies in set B, then we can say that set A is the subset of set B. So every event is the subset of sample space. See here event A contain 2, 4, 6. All the element of event A lie in the sample space S. So A is the subset of S. So you must remember that event is a subset of the sample space. Clear? Here we complete the event. Now we start practice set 5.3. Question number 1 of practice set 5.3 is write sample space S and number of sample point n of S for each of the following experiment. Also write events A, B, C in the set form and write n of A, number of element in A, n of B, number of element in B, n of C, number of element in C. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपको क्या करना है? नीचे जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं उनके लिए सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट n ऑफ s लिखना है, और इसके साथ आपको क्या करना है? इवेंट A, इवेंट B, इवेंट C भी लिखना है, और
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन ऑफ ए लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एन ऑफ बी लिखना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी एन ऑफ सी लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वन die is rolled, event A, even number on the upper face, event B, odd number on the upper face, event C, prime number on the upper face। अब यहां पर हम कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हम क्या करें, डाई रोल कर रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके लिए सैंपल स्पेस क्या आता है वो लिखेंगे और एन ऑफ एस लिखेंगे। बाद में सैंपल स्पेस को देखकर जो पूछे गए इवेंट्स है वो लिखेंगे हम। वन die is rolled, what is the sample space? Sample space S in bracket, S is equal to, in curly bracket we get 1, 2, 3, 4, 5 and 6, curly bracket close. N of S, here the number of sample point are 6, N of S 6. Event A is even number on the upper face. Condition for event A, even number on the upper face, इवेंट ए क्या है? आपने क्या करे, डाई रोल करे तो डाई के अपर फेस पर इवन नंबर आता है। अब इवन नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं या जिन नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 2 और 4 और 6 और 8 इनमें से कोई एक डिजिट होता है, उसे क्या बोलते? इवन नंबर बोलते। अब हम ए लिखेंगे, which are the even number in the sample space S? 2, 4, 6. Number of element in A are 3, 1, 2 and 3. Now we write event B. Event B, odd number on the upper face. Condition for event B, odd number on the upper face.
अब इवेंट बी क्या है, आपने डाई रोल करे तो डाई के अपर सरफेस पर ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, या जिन नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 और 3 और 5 और 7 और 9 इनमें से कोई एक डिजिट होता है। अब ये जो सैंपल स्पेस S है उसमें ऑड नंबर कौन से हैं, 1, 3 और 5। 1, 3, 5। N of B कितना है, 3 है। Now we write event C. Event C prime number on the upper face. Condition for event C, prime number on the upper face. इवेंट सी क्या है, आपने क्या करे, डाई रोल करे तो डाई के अपर फेस पर प्राइम नंबर आता है। अब प्राइम नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एक बात याद रखना है, 1 जो है इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। क्लियर? सो द प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। Clear? So we write C here. Which are the prime number here? 2, 3 and 5. We write here 2, 3, 5. N of C is, how many elements are in C? 3. Here we complete question number 1. Question number 2. 2 dice are rolled simultaneously. Event A, the sum of the digits on upper faces is a multiple of 6. Event B, the sum of the digits on the upper faces is minimum 10. Event C, the same digit on both the upper faces. अब क्वेश्चन में कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है, आपने क्या करना है, 2 डाई रोल करना है। 2 डाइस are rolled simultaneously. You write here 2 dice are rolled simultaneously.
we write the sample space. S is equal to, in curly bracket, in first bracket 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5, 1 comma 6. ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है. Then 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 5, 2 comma 6, 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4, 3 comma 5, 3 comma 6, 4 comma 1, 4 comma 2, 4 comma 3, 4 comma 4, 4 comma 5, 4 comma 6. Then 5 comma 1, 5 comma 2, 5 comma 3, 5 comma 4, 5 comma 5, and 5 comma 6. 6 comma 1, 6 comma 2, 6 comma 3, 6 comma 4, 6 comma 5, and 6 comma 6. Curly bracket close. Now we write here n of s. We know if 2 dice are rolled, n of s is 36. We write 36. Event A. The sum of the digits on upper faces is a multiple of 6. First we write condition for event A. The sum of the digits on upper faces is a multiple of 6. देखिए इधर इवेंट ए क्या है, आपने 2 डाई रोल्ड करे तो उन डाइस के अपर फेसेस पे जो डिजिट आ रहे उनका अगर आपने सम करे तो वो क्या आता है, 6 के मल्टीपल में आता है. अब 6 के मल्टीपल कौन से हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये आता है. तो हम इवेंट ए लिखेंगे यहां पर. अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर ब्रैकेट में दोनों डाई के अपर फेसेस पर जो डिजिट आ रहे वो लिखे हमने. अब डाई थ्रो करने के बाद, डाइस थ्रो करने के बाद अब क्या आ गया अपर फेसेस पे, 1 और 1 आया. अब इनकी सम करें हमने
1 और 1 की सम करें 2 आता है। हमें क्या चाहिए, अपर फेस के डिजिट की सम करने के बाद सम क्या आना चाहिए, 6 के मल्टीपल में आना चाहिए। अब यहां क्या आ रहा, सम करने के बाद 2 आ रहा, 2 6 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे वो। अब ये 1 + 2 3 होता है, ये भी नहीं लिख सकते हम क्योंकि 6 का मल्टीपल नहीं है। 1 + 3 4 होता है, 1 + 4 5 होता है, 1 + 5 क्या होता है, 6 होता है, ये 6 का मल्टीपल है, इसलिए यहां पर लिखेंगे 1, 5। 1 + 6 7 होता है, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 6 का मल्टीपल आ रहा है यहां पर सम करने के बाद, यहां लिख देंगे 2, 4। 2 + 5 7, 2 + 6 8, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 6 का मल्टीपल आया, यहां लिख देंगे 3, 3। 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9, 4 + 1 5, 4 + 2 6, ये लिखेंगे यहां पर इन ब्रैकेट 4, 2। 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, 5 + 1 6, ये लिख सकते हैं यहां पर हम 5, 1। 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12. 12 is the multiple of 6. We write here 6, 6. Six, 6. And of A, number of element is A. Number of element in A is how much? It is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 element. We write the condition in which the sum of the digit on the upper face is the multiple of 6. Event B, the sum of the digits on the upper face is minimum 10. Condition for event B, the sum of the digits on upper faces is minimum 10. इवेंट बी क्या है, आपने क्या करे, 2 डाई रोल करे तो उन डाइस के अपर फेस पर जो डिजिट आते हैं उनका सम मिनिमम कितना होता है, 10 होता है। अब मिनिमम 10 का मतलब क्या है, 10 और मोर देन 10, नॉट लेस देन 10। मिनिमम 10 यानी 10 या 10 से ज्यादा, 10 से कम नहीं, ये बात आपने याद रखना है। आप क्या करेंगे, अपर
फेस पर जो डिजिट आ रहा उनका सम करेंगे। सम करने के बाद अगर सम 10 आता है तो वहां लिखना है आपने बी में, 11 आता है तो भी लिखना है, 12 आता है तो भी लिखना है। ये बात आपने याद रखना है। लेकिन 10 से कम आता है तो लिखना नहीं है। सो बी में क्या लिखेंगे, देखो आप, सम क्या आना चाहिए, यहां पर मिनिमम 10 आना चाहिए। मिनिमम 10 का मीनिंग क्या है, 10 और मोर देन 10, नॉट लेस देन 10। अब देखिए ये 1 और 1 2 हो गया, आपको क्या है 10 या 10 से ज्यादा होना, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां सम कितना आता है, 4 है, यहां पर 5 है, यहां 6 है, यहां पर सम कितना आता है 7, यहां 8 आता है, यहां 9 आता है, यहां 5 आता है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 9 है, यहां 10 है। 4,6, 4 प्लस 6 कितना 10 होता है, यहां लिख देंगे हम 4,6। यहां पर 6, यहां 7, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 10 आ रहा, 5,5 10 होता है, यहां पर 5,5, 5 प्लस 5 क्या हो गया 10 हो गया। अब ये 5 प्लस 6 11 होता है, 11 लिख लेना है यहां पर, 5 प्लस 6 11। अब यहां पर 7 आता है, यहां पर 8 आता है, यहां 9 आता है, यहां 10 आता है, 6,4, 6 प्लस 4 10 होता है, यहां लिखेंगे 6,4। 6,5, 6 प्लस 5 11 होता है, ये भी लिख लेना है 6,5। और लास्ट है 6,6, 6 प्लस 6 12 होता है, ये भी लिख लेना है आपने। एन ऑफ बी लिखना है आपको। एन ऑफ बी क्या है यहां पर, एन ऑफ बी देखिए, अब बी में कितने एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ये 4, ये 5, ये 6। कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इवेंट सी लिखेंगे। इवेंट सी, the same digit on both the upper faces. Condition for event C, the same digit on both the upper faces. इवेंट सी क्या है, आपने क्या करे, डाइस रोल करे तो दोनों डाइस पर सेम डिजिट आते हैं। पहले डाई पर, पहले डाई के अपर फेस पर जो डिजिट आया वही दूसरे डाई के अपर फेस पर आता है। तो हम इवेंट सी लिखेंगे यहां पर। अब यहां क्या किया हमने, अपर फेस पर जो डिजिट आते हैं वो लिखे हमने। तो देखिए यहां पर ये 1,1, यहां पर दोनों डाई के अपर फेस पर सेम डिजिट आता है, तो यहां लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 1,1। अब ये 1,2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों डाइस के अपर फेस पर सेम डिजिट नहीं है। पहले डाई के अपर फेस पर 1 है, दूसरे डाई के अपर फेस पर 2 है।
फिर दूसरा कौन सा लेंगे यहां पर, हम यहां लेंगे 2,2, 2,2, उसके बाद 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। अब ये जितनी भी कंडीशन है उसमें क्या है, दोनों डाइस के अपर फेस पर सेम डिजिट आ रहे, इसलिए हमने लिखे यहां पर। एन ऑफ सी कितना है यहां पर, देखिए 6 है, ये 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3, 4, 5 एंड 6। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 coins are tossed simultaneously. Condition for event A to get at least 2 heads. Condition for event B to get no head. Condition for event C to get head on the second coin. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, we are tossing 3 coins simultaneously. So first we write sample space here. 3 coins are tossed simultaneously. Sample space. If 3 coins are tossed simultaneously, what will be the sample space? H, 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 T, H, T, H, T, H, 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 T, T, फिर T, H, T, उसके बाद T, T, H और लास्ट में T, T, T। N of S कितना है, 8। Condition for event A to get at least 2 heads. Condition for event A to get at least 2 heads. अब देखिए यहां पर इवेंट ए क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट क्या है, आपने क्या किए 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस करे तो उन कॉइन पर एटलीस्ट 2 हेड्स आते हैं। अब एटलीस्ट 2 हेड की मीनिंग क्या है, 2 हेड्स और मोर देन 2 हेड्स, not less than 2 head. एटलीस्ट 2 हेड की मीनिंग क्या है, 2 हेड और 2 से ज्यादा हेड, लेकिन 2 से कम हेड नहीं। ये बात आपने याद रखना है।
अब देखिए ए में क्या चाहिए आपको, एटलीस्ट 2 हेड वाली कंडीशन चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा एटलीस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या है, 2 हेड और मोर देन 2 हेड, नॉट लेस देन 2 हेड। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर 2 हेड वाले और 2 से ज्यादा हेड वाले यहां लिखेंगे। अब 2 हेड वाले कौन से, यहां पर देखिए HHT, HTH, THH। अब क्या लिखे हमने, 2 हेड वाले लिख लिए। वी राइट हियर द कंडीशन हैविंग 2 हेड। नाउ वी राइट मोर देन 2 हेड। मोर देन 2 हेड मीन्स दिस, ये यहां लिख देंगे। अब HTT नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 1 हेड आ रहा। आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड मीन्स 2 हेड और मोर देन 2 हेड। एन ऑफ ए कितना आएगा, यहां पर 4 आएगा। कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड। कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड। अब इवेंट बी क्या है, आपने क्या किए, 3 कॉइंस साइमल्टेनियसली टॉस करे तो वहां पर हेड नहीं आता है। अब हमको क्या करना है, सैंपल इसमें से ऐसी कंडीशन लिखना है जिसमें हेड नहीं आता है, मीन्स एच नहीं आता है। वो कहीं में लिखेंगे हम, इवेंट बी में। अब देखिए यहां पर 8 कंडीशन है, 8 रिजल्ट है, उसमें से एच किस में नहीं आता है, ये लास्ट वाले में। यहां पर तीनों कॉइन पर भी टेल आता है, तो यहां लिख देंगे हम टी टी टी। एन ऑफ बी क्या आएगा, 1। कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड on the second coin। अब कंडीशन सी क्या है, आपने क्या किए, 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करे तो यहां क्या आता है, सेकंड कॉइन पर हेड आता है। हमको क्या करना है, हमारे पास 8 कंडीशन है, उसमें से 8 रिजल्ट में से ऐसे रिजल्ट सीट्स इवेंट सी में लिखना है जहां पर मिडल में हेड आता है, सेकंड वाले कॉइन पर हेड आता है। देखिए यहां पर ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड, ये थर्ड। ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो मिडल में क्या आया, यहां पर हेड आया। ये कंडीशन लिख देंगे हम, एच एच एच। यहां देखिए अब ये फर्स्ट कॉइन पर, ये सेकेंड, ये थर्ड, अब सेकेंड कॉइन पर हेड आ रहा, ये लिख देंगे यहां पर हम एच एच टी। अब ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम मिडल में क्या रहे, यहां पर सेकेंड कॉइन पर
टेल आ रहा है, आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए। अब ये यहां पर ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकेंड, ये थर्ड, यहां पर सेकेंड कॉइन पर क्या आ रहा, हेड आ रहा, ये लिख लेंगे हम THH। ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड कॉइन पर टेल आ रहा, आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए। अब ये लिखेंगे THT, सेकेंड कॉइन पर H आया, यहां पर हेड आया, THT। अब ये भी नहीं लिखेंगे और ये भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड कॉइन पर टेल है, आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए। N ऑफ C कितना है, 4 है। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। इंशाअल्लाह न्यू वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।